Hello friends, welcome to my channel The Legal Gazette. Today we are going to discuss what is a research. This is the first step in research methodology. We are going to discuss what is research and what are the objectives of the research. So now we will move directly to what is a research. Very commonly research is known as a search for a knowledge. Very commonly research refers to a search for a knowledge. मतलब क्या है, किसी भी नॉलेज के लिए खोज करना, इसको बोलते हैं रिसर्च. रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक. इसका मतलब क्या है कि रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च है. किस लिए, कोई भी पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन है, अपने पास कोई भी एक इंफॉर्मेशन है, उसके स्पेसिफिक टॉपिक पे पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे, इसे बोलते हैं रिसर्च. So the research can be termed as an art of a scientific investigation. So the research can be termed as an art of a scientific investigation. So in common parlance, we can say that research is an art as well as a science. Now, the dictionary definition of the research is a careful investigation or inquiry, especially through search for a new facts in any branch of knowledge. Scientifically, research can be defined as a careful investigation or an inquiry, especially through search for a new facts in any branch of a knowledge. मतलब नॉलेज के कौन से ही भी ब्रांच में, कौन से ही भी शाखा में रिसर्च क्या है, नॉलेज के कौन से भी शाखा में एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, केयरफुल तहकीकात है या इंक्वायरी, मतलब तहकीकात या चौकसी जो है वो है, उसको बोलते हैं रिसर्च. रिसर्च इज अ मूवमेंट फ्रॉम नोन टू अननोन. रिसर्च इज अ मूवमेंट फ्रॉम नोन टू अननोन. क्या है रिसर्च? रिसर्च जो है ज्ञात के अज्ञात की ओर जाने वाला जो रास्ता है उसे रिसर्च कहा जाता है. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट रिसर्च इज अ वोयाज ऑफ डिस्कवरी. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट रिसर्च इज अ वोयाज ऑफ डिस्कवरी. नाउ रिसर्च, RESEARCH, research. What each letter stands in the research we can discuss, and this is shown in the flow chart below. R in the research stand for rational way of thinking. E in a research stands for expert and exhaustive treatment. Then S in a research stands for search for solution. Then E in a research stands for exactness. I will repeat. R in a research stands for rational way of thinking. E in a research stands for expert and exhaustive treatment. Then S in a research stands for search for solutions. Then E in a research stands for exactness. Now A in a research stands for analytical analysis of adequate data. Analytical analysis of adequate data. Then R in a research stands for relationship between facts and variables. R in a research stands for relationship between facts and variables. Then C in a research stands for constructive attitude, critical observation, condensed and compactly stated generalization, cautions and careful recordings. C in a research stands for constructive attitude, then critical observation, condensed and compactly stated generalization, cautions and careful recording. This C in a research stand for what I have explained. Yes. And lastly, H in a research stands for honest and hard work. H in a research stands for honest and hard work. Let me explain Hindi. Research क्या है? रैशनल वे ऑफ थिंकिंग. आर क्या किस लिए बोलता है कि रैशनल वे ऑफ थिंकिंग थे, मतलब जो अपने सोच का रैशनल वे है उसे आर से डिनोट किया जाएगा. फिर उसके बाद ई जो है क्या है, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, एक्सपर्ट और एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट. उसके बाद एस फॉर सर्च फॉर सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिए खोज करना है, सर्च फॉर सोल्यूशन. देन ई एक्जैक्टनेस, एक्जैक्टनेस मतलब एक्यूरेसी. देन ए एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ एडिक्वेट डाटा, एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ एडिक्वेट डाटा, जो भी डाटा हमने निकाला हुआ है या फाउंड आउट हुआ है उसे क्या करना है, एनालिटिक एनालिसिस करना है. कैसा? एनालिटिकली. उसके बाद आर रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड वेरिएबल्स, जो भी फैक्ट्स और वेरिएबल है उनमें क्या रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करना. उसके बाद सी फॉर कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, देन क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस, कंडेंस एंड कॉम्पैक्टली स्टेटेड जनरलाइजेशन, कॉशंस एंड केयरफुल रिकॉर्डिंग्स. जो भी है सबके रिकॉर्डिंग रखना, केयरफुली रिकॉर्ड करना, ये जो भी है उसी में आएगा. और उसके बाद लास्टली एच ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क, ऑनेस्टी ईमानदारी और हार्डवर्क. नाउ वी विल मूव टू द डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च. There are various authors who have defined the research. We can have some of the definitions. Firstly, D. Schlesinger and M. Stephenson in Encyclopedia of Social Sciences defined as research is the manipulation of things, concepts or symbols for the purpose of generalizing to extend, correct or verify knowledge, whether that knowledge
एड्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थियरी और इन द प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट। ये क्या है, डी स्लेसिंजर एंड एम स्टीफनसन की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस से उन्होंने डेफिनेशन दी वाली है। उसे क्या बोलते हैं कि रिसर्च इज अ मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, मतलब थिंग्स को मैनिपुलेट करना या कंसेप्ट को मैनिपुलेट करना या सिंबल्स को मैनिपुलेट करना। उसका पर्पस क्या है, क्योंकि जनरल जो कि ये मैनिपुलेट करने के बाद जनरलाइजिंग टू एक्सटेंड, जो भी जनरलाइजेशन है उसको क्या करना, एक्सटेंड करना है ना, उसे बढ़ाना, कहाँ एक्सटेंड बढ़ाना या करेक्ट करना, मतलब सही करना या वेरीफाई करना, या उसको वेरीफाई मतलब उसको वेरीफाई करना नॉलेज को। किस लिए कि वो जो नॉलेज, जो वेरीफाई होने वाला नॉलेज है वो क्या करेगा, एड्स करेगा, मतलब हेल्प करेगा, मददगार होगा किसमें, आइदर इन कंस्ट्रक्ट, या तो थ्योरी का कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी, या तो कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी में मददगार होगा, या तो प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट, इसमें मददगार होगा। देन क्लिफोर्ड वुडी, अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड वुडी, रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशंस, collecting and evaluating data, making deductions and reaching conclusions, and at last carefully testing the conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis. रिसर्च का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढना और उसके बाद हाइपोथेसिस फ्रेम करना। सो ये जो डेफिनेशन है वो दी है क्लिफोर्ड वुडी जी ने। वो क्या बोलते हैं कि रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, defining and redefining research problems, then formulating hypothesis, then suggested solutions, then collecting, organizing and evaluating data, making deductions and reaching conclusions, and at last carefully testing the conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis. ये जो रिसर्च के स्टेजेस है, ये जो स्टेप्स है, फर्स्ट सेकंड स्टेप्स, ये क्लिफोर्ड वुडी जो है उनके डेफिनेशन में इन्वॉल्व होने वाले हैं। सो इन जनरल वी कैन से दैट research is thus an original contribution to the existing stock of knowledge making for its advancement। मतलब अपने पास जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञात है हमें चीजें, उसको एडवांसमेंट के लिए जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन होगा, जो भी उसको एडवांस करने के लिए कोई ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसे रिसर्च कहा जाता है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू मैनहीम, research is the careful, diligent and exhaustive investigation of a specific subject matter which has its aim as the advancement of mankind's knowledge। क्या है, रिसर्च इज अ केयरफुल डिलीजेंट एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर विच हैज इट्स एम एट द एडवांसमेंट ऑफ मैनकाइंड्स नॉलेज। मतलब क्या है कि मैनकाइंड का जो भी नॉलेज है, हमें जो हमारा जो ज्ञान है, वो ज्ञान को क्या करना है, एडवांस करना है, मतलब उसे बढ़ाना है। तो किस चीज से बढ़ाना है, कि कैसे बढ़ाना है, तो केयरफुल, डिलीजेंट एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। किसी भी सब्जेक्ट मैटर में हमें डिलीजेंट रहना है, मतलब हम डिलीजेंट होना है, केयरफुल मतलब जो भी बहुत ही केयरफुली करना है, और एग्जॉस्टिव, ये जो है ये डेफिनेशन दी है मैनहीम ने। देन अकॉर्डिंग टू लैंडबर्ग, research is a method sufficiently objective and systematic to make possible classification, generalization and verification of the data observed। क्या है कि हमें जो डेटा मिला है, हमने जो डेटा ऑब्जर्व किया है, हमारे ऑब्जर्वेशन से जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, उसको क्या करना है कि उसको क्या करना है, सिस्टमैटिक वे से क्या करना है, उसको तो क्लासीफाई करना है डेटा को, उसके बाद उसको जनरलाइज करना है और उसके बाद वेरीफाई करना है। ये जो डेफिनेशन है ये है लैंडबर्ग जी ने जो रिसर्च की डेफिनेशन दी वाली है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू कुक, रिसर्च एंड ऑनेस्ट एग्जॉस्टिव इंटेलिजेंट सर्चिंग for facts and their meanings or implications with reference to a given problem। यहाँ पे क्या है कि वो अपने कोई प्रॉब्लम दिए वाला है, गिवन प्रॉब्लम, मतलब एक प्रॉब्लम दिया सो है, तो उसके ऊपर हमें एक ईमानदारी से किया हुआ काम, एग्जॉस्टिव जो कि बहुत हम हार्डवर्क से किया है, हार्ड वर्किंग है। उसके बाद इंटेलिजेंट सर्चिंग, इंटेलिजेंट मतलब इंटेलेक्ट, हमारे बुद्धि का यूज करके, हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि को यहाँ पे हम यूज करके जो भी मिलने वाला है उससे, और क्या है ना, और उसका मीनिंग निकालना है डेटा का, और इम्प्लीकेशंस होना है, उससे बोलते हैं रिसर्च। नाउ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इज गिवन बाय रेडमैन एंड मेरी, which is systematized efforts to gain knowledge। what is the research? Research is the systematized efforts to gain knowledge। मतलब कि रिसर्च क्या है कि एक सिस्टमेटाइज एफर्ट्स है, किस लिए, कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ये है रेडमैन एंड मैरी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पी.वी. Young, research is a scientific undertaking aiming to discover new facts or verify old facts, analyze their sequences, interrelationships, and causal explanation derived within an appropriate theoretical frame of reference, develop new scientific tools, concepts, and theory,
which would facilitate reliable, valid study of human behavior. It is done by means of a logical and systematized techniques. I will repeat. According to Dr. P.V. Young, research is a scientific undertaking aiming to discover new facts or verify old facts, then analyze their sequences, interrelationship, and causal explanations derived within an appropriate theoretical frame of reference, develop new scientific tools, concepts, and theory which would facilitate reliable, valid study of human behavior. It is done by means of a logical and systematized techniques. ये है according to Dr. P.V. Young. Now, Maurya Mathur. According to Maurya Mathur, research is thorough and exhaustive study of the subject clothed in an enhanced presentation with correction to chosen topic. It is the most exhaustive academic written dissertation. It presents serious and analytical bent for the academics. ये डेफिनेशन एकेडमिक डिसर्टेशन के बारे में दी वाली है अकॉर्डिंग टू मौर्य माथुर. क्या रिसर्च क्या है? एक थॉरो एंड एग्जॉस्टिव स्टडी है. थॉरो एंड एग्जॉस्टिव स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की थॉरो एंड एग्जॉस्टिव स्टडी है और क्लोथेड इन एन एनहांस प्रेजेंटेशन विद करेक्शन टू द चूजन टॉपिक. मतलब एनहांस किया वाला है, ऐसा मोल्ड किया वाला है कि उसको चूजन टॉपिक को एनहांस किया वाला है, उसमें करेक्शन है. और इट इज मोस्ट एग्जॉस्टिव एकेडमिक रिटर्न डिसर्टेशन. मतलब कि एकेडमिकली रिटर्न डिसर्टेशन को रिसर्च कहा जाता है. नाउ अकॉर्डिंग टू जॉन बेस्ट, research is to be more formal, systematic, intensive process of carrying as the scientific method of analysis. It involves more systematic structure of its investigation, usually resulting in some sort of formal record of procedures and a report of results or conclusions. मतलब क्या है कि रिपोर्ट और कंक्लूजन है. ये क्या है? प्रोसीजर के बाद रिपोर्ट है. फॉर्मल रिकॉर्ड रहेगा किसका? रिपोर्ट्स और कंक्लूजन. जो भी है उसको आपको याद करते जाना है, ये करना है, और एंड में क्या करना है? रिपोर्ट लिखना है या conclusion writing. ये John Best. According to John Best, we have discussed some of the definitions of the research as well as what is meant by a research. Now we move towards what are the objectives of research. There are 4 objectives of research on which research studies are carried out. As per the objectives, research studies are carried out. So the first objective of the research is to gain familiarity with a phenomenon or to achieve new insights into it. To gain a familiarity with phenomenon or to achieve new insights into it. किसी भी phenomenon के साथ जो भी family relation है वो प्राप्त करना, या वो जो phenomenon है उस phenomenon मिला है उसके अंदर में अपने को कोई new development, new insights है क्या, ये देखना. ये जो है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है. और ये जो रिसर्च स्टडी है उसे बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज. एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज. नाउ सेकंड ऑब्जेक्टिव इज दैट to portray accurately the characteristics of a particular individual, situation or a group. To portray accurately the characteristics of a particular individual, situation or a group. किसी भी इंडिविजुअल, सिचुएशन या ग्रुप के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे एक्यूरेटली पोर्ट्रे करना. मतलब एक्यूरेटली उससे दिखाना या पोर्ट्रे करना, मतलब उसको दिखाना. इसे बोलते हैं जो है, ये है सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च. और दिस टाइप ऑफ स्टडी इज नोन एज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज. दिस इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज. नाउ देन थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च. थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विथ विच समथिंग ऑकर्स और विथ विच इट इज एसोसिएटेड विथ समथिंग एल्स. आई विल रिपीट. टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ विथ विच समथिंग ऑकर्स और विथ विच इट इज एसोसिएटेड विथ समथिंग एल्स. मतलब क्या है कि कोई भी चीज किस फ्रीक्वेंसी से, मतलब किस मर्तबा से रिपीट होती है, ऑकर होती है, आती है. ऑकर मतलब उत्पन्न होती है, उसको डिटरमाइन करना. या कि ये जो कोई भी चीज है उसका किसी और चीज से जो भी रिलेशन है, उसका नाता जो भी, रिश्ता जो भी है, वो ये जो है वो उसको क्या करना? डिटरमाइन करना. इससे ये है थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च. एंड ये जो रिसर्च स्टडी है उसे बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज. Diagnostic research studies. Now last objective, the fourth and last objective is that to test a hypothesis of a causal relationship between variables. To test a hypothesis of causal relationship between variables. जो भी वेरिएबल्स में जो causal relationship है, उनमें जो वेरिएबल्स में जो causal relationship है उसे टेस्ट करना. जो उस पर जो हमने हाइपोथेसिस जो फ्रेम किया है उसे टेस्ट करना. इसे बोलते हैं, जो भी है ये फोर्थ ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च. और ये इस टाइप की स्टडी को बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज. Hypothesis testing research studies. The objectives of research can be easily understood with a flow chart. That there are the 4 objectives of research. So objective of research, first is
मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, कंसेप्ट्स ऑफ सिंबल्स। इसमें से हम इसको जो है हम कंक्लूड करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि क्या है ऑब्जेक्टिव्स में से, एक तो मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, कंसेप्ट्स ऑफ सिंबल्स। मतलब जो भी रिसर्च करने के आपने क्या करना होगा, जो ऑब्जेक्टिव्स है, तो मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, कंसेप्ट्स और सिंबल्स, किसी भी चीज को, किसी भी कंसेप्ट को या किसी भी सिंबल को हमें मैनिपुलेट करना है। देन सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो आएगा फॉर द पर्पज ऑफ जनरलाइजेशन। हमें जनरलाइजेशन टू हमें जाना है, तो जनरलाइजेशन टू जो है तो फॉर द पर्पज ऑफ जनरलाइजेशन। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जनरलाइजेशन को सोचना है। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सटेंड करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज। टू एक्सटेंड करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज मतलब क्या, अभी नॉलेज है या तो उसे हमें बढ़ाना है, जो भी हमें ज्ञात है उस चीज को बढ़ाना है, या उसे करेक्ट करना है, जो कि हमें लगा कि इसमें ये चीज है इसको करेक्ट करना है, समझो हम बोलते हैं ना करेक्शन रिकरेक्शन, लाइक इसको करेक्ट करना है, या तो वेरीफाई करना है, जो भी नॉलेज अवेलेबल है उसे वेरीफाई करना है कि ये चीज है भी या नहीं भी, मतलब ये सही है या नहीं भी। ये थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। एंड फोर्थ इज दैट द नॉलेज में बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थियरी और प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट। मतलब जो भी हमने ये तीनों चीज करके जो भी नॉलेज हमें मिला है तो वो कहाँ यूज होने वाला है, कहाँ पे उसका उपयोग होने वाला है, या तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थ्योरी मतलब कोई नई थ्योरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थ्योरी, न्यू थ्योरी, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी वगैरह है, उस तरफ से कोई नई थ्योरी का इन्वेंशन हो सकता है, या तो प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट, या तो थ्योरी में जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू थ्योरी, या तो प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द रिसर्च, what is the basic meaning of research, then definitions of research, and lastly we have concluded our lecture by the objective of research. Thank you.